بنی اسرائیل سے کہنا کہ میرے لیے نظر لائے. خداوند نے پاسٹر رضا سے فرمایا کہ تو ازارٹن چرچ سے کہنا میرے لیے مل کر شاباش. ازارٹن چرچ سے کہنا کہ میرے لیے ہاں کہہ دو شاباش مل کر. تو ازارٹن چرچ سے کہنا شاباش اقرار کرے. تو ازارٹن چرچ یوتھ سے کہنا کہ میرے لیے نظر لائے, میرے لیے نظر لائے. آمین, پریز دی لارڈ. اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دے. اس بات کو سن لیں, تم انہی سے نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دے. بھلا کیوں؟ کیونکہ خدا جو ہے وہ خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. خدا نے اس بات کا اعلان کیا اور مقدس موسیٰ نے کہا کہ تو کیا کر, اب اس بات کا اعلان کر جب تو اب وقت ہے کہ اس خیمہ اجتماع کو, اس اجتماع کو مکمل کیا جائے, اس کو بنایا جائے. اور کلام میں لکھا کہ لوگوں نے جب ہدیہ دینا شروع کیا, جب زیورات دینا شروع کیے, اور پھر ایسا ہوا کہ بہت ہو گیا اور مقدس موسیٰ نے اعلان کیا کہ بھائی اب بس کر دے کہ خیمہ اجتماع کے اندر بہت ہو گیا, یہ کافی ہے کہ ہم اس خیمہ اجتماع کو تعمیر کر لیں. اس کی تعمیر کا کام اب کافی ہے ہمارے پاس, ہم اس کو مکمل کر لیں گے. اور کلام میں لکھا ہے تم سے لینا کیا ہے, اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہے, سونا, مل کر سونا اور چاندی اور پیتل. پھر مل کر سونا اور چاندی اور پیتل. سونا, چاندی اور پیتل. اگر میں ابھی اعلان کروں تو ایک ایک تولہ سونا آپ نے دینا ہے سامنے, کام اوکھا ہے نا, اوکھا کہ نہیں اوکھا؟ پریز دی لارڈ. لیکن خدا مشکل کام کو بھی آسان کر دیتا ہے. پریز دی لارڈ. کلام میں لکھا ہے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا اور باریک کتان اور بکری کی پچھم. اس بات کو سمجھ لیں, خیمہ اجتماع کی چھت پر جو چیز استعمال ہوئی وہ بکری کی پچھم تھی. وہ کیا تھی؟ بکری کی پچھم, یعنی اس کی اون, اس کی کھال آپ کہہ سکتے ہیں, یا اس کی اون جو خیمہ اجتماع کی چھت پر استعمال ہوئی وہ بکری کی پچھم تھی. پریز دی لارڈ. اب دیکھیں خیمہ اجتماع جو تھا وہ کتنا قیمتی ہوگا اس دور کے اندر, جس کے اندر سونا اور چاندی اور پیتل اور پھر بکری کی پچھم استعمال ہوئی ہے. وہ کتنی خوبصورت بلڈنگ ہوگی, وہ کتنا شاندار ماحول ہوگا. پریز دی لارڈ. اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخت کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی. میرا خیال ہے کیکر کی لکڑی آج بڑی مہنگی ہے نا, بڑی مہنگی ہے. اور چراغ کے لیے تیل اور مسح کے لیے تیل کے لیے خوشبودار بخور کے لیے مسالہ اور سنگ سلمانی اور افود اور سینہ بند میں جڑنے کے لیے نگینے. کیا جی؟ نگینے والا کیا ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ یہ کھیرے کی کسان ہے. نگینے جو ہے وہ کہنوں کے سینے بند پر لگائے جاتے ہیں. یہاں پر سینہ بند بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر نگینے, جو کہن جب امامت کے سر انجام دے, اس فرائض کو سر انجام دے, تو وہاں پر یہاں پر سینے بند کے اندر نگینے ہیرے. خدا ہے سنا, خدا نہیں ہے, ہاں خدا بڑے عظیم. یہاں پر دیکھیں خدا نے جو نقشہ دیا ہے اجتماع کا, بڑا خوبصورت نقشہ ہے. کیا کرنا, تم تخت کی کھالیں اور پھر بکروں کی کھالیں, پھر بکری کی کھال کی پچھم جو ہے وہ لے کر آنا, آسمانی اور ارغوانی رنگ کے پردے لے کر آنا, تاکہ خیمہ اجتماع کے سامنے لگایا جائے. پریز دی لارڈ. اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے. کیا بنائے جی؟ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں, اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں گا ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا. پریز دی لارڈ. جو نمونہ خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں گا, تم اسی کے مطابق ٹھیک اس مسکن کو بنانا. ازارٹن چرچ کلام خدا میں لکھا ہے, آج اگر تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت شاباش مل کر, اگر آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو اور اپنی جیبوں کو سخت نہ کرو. شاباش مل کر, اگر آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنی جیبوں کو سخت نہ کرو. کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جو نقشہ میں تمہیں دوں تم میرے لیے اس مسکن کو بنانا. پریز دی لارڈ. اگر ہم اس پورے چیپٹر کو پڑھیں تو کلام خدا میں لکھا ہے وہاں پر جو شمعدان تھا وہ شمعدان مکمل سونے کا تھا. وہ مکمل, ہم اگر یہاں پر رکھتے پر لگتا کو لائے جائے, اگر آپ گاڑی کو لائے جائے, اس مسکن کے اندر سونے اور چاندی کا کام جو ہوا, اور خدا نے اپنے لوگوں کو اس قدر تیار کیا کہ انہوں نے اپنے دل کو کھولا, اپنے دل کو کھولا, اور وہ اپنے لیے اور خدا کے گھر کے لیے, مسکن کے لیے سونا اور چاندی اور پیتل
शक्कर और मसाला जात और फिर तिखट तेल जो बखूर जलाने के लिए था और तहारत के लिए फिर वो मटके और सारी चीजें उन्होंने खुदा के लिए दी। और कलाम खुदा में लिखा है मैं फिर उनका खुदा होगा और मेरे लोग होंगे और मैं अपना मस्कन अपना घर उनके दरमियान तामीर करूंगा। आगे जाकर हम इस मस्कन की तामीर के बारे में बताएंगे। खुदा ने रूबरू मुकद्दस मूसा से बात की कि किस तौर से मेरा मस्कन होना चाहिए। इसको मान करते भाई डिस्टर्बेंस का खुदा ने रूबरू मुकद्दस मूसा से बात की कि किस तौर से तुम्हें इस मस्कन की तामीर करनी है, किस तौर से पर्दे यहाँ पर लगाने और पर्दे किस रंग के होने चाहिए। हम आगे जाकर इस बात को पढ़ेंगे, लेकिन जो पहली बात है हमने अपने दिल को खुदावन के लिए खोलना है, अपने वक्त को खुदावन के लिए। कभी कभी हम शायद काम से जान छुड़ाते हैं, आए भाई जी करो तो थके आए तो चर्च चलिए। एटलीस्ट देखिए ये चर्च रोज रोज ही बनना ऐसी है, ये चर्च रोज रोज तामीर नहीं होना। हम हर किसी ने अपने वक्त में से, अपने पैसे में से, अपने टाइम में से, अपने मशवरे में से जरूर खुदावन के लिए कुछ करना है। तुम में से हर एक शख्स, यहाँ पर लिखा तुम में से। अच्छा कभी कभी हम कहते साड़ी कमाई कोई नहीं है, तो आगे जाकर लिखा है इतने गरीब या अमीर का कोई वो नहीं है, कोई दर्जा नहीं है, ना अमीर ज्यादा दे और ना गरीब उससे कम दे। आगे हम इस बात को पढ़ेंगे आगे जाकर। ना अमीर ज्यादा दे, नी मस्काल की बात हुई है, और ना गरीब उससे कम दे, यहाँ पर लिखा हुआ। आगे हम इस बात को पढ़ेंगे जाकर। खुदा किसी का तरफदार नहीं है, खुदा किसी का तरफदार नहीं है, खुदा सबके लिए एक सा है। खुदा का मी और खुदा का सूरज जो है वो नेको और बदों दोनों पर चमकता है। खुदा का सूरज जो है वो नेको और बदों दोनों पर चमकता है। हम जब छोटे थे तो हम स्कूल में एक गीत गाया करते थे, ईंट हम लगाएंगे दीवार हम बनाएंगे, यानी एक ईंट लगती है फिर दीवार मुकम्मल हो जाती है। आपके 1,000 रुपया, आपका 500 रुपया भी मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। वो शायद किसी पाइप्स के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं, किसी और काम के लिए, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी मिलकर बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉर सपोज ईंट हम लगाएंगे, दीवार हम बनाएंगे, हम सब ने मिलकर इस खिदमत के खेत में काम करना है। हम सब ने मिलकर इस खिदमत में खेत में काम करना है। और खुदा मुकद्दस मूसा को जब हदायत करा कह रहा है तुम में से हर एक शख्स, तुम में से शाबाश मिलकर तुम में से हर एक शख्स खुदावन के लिए नजर लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सब क्या करें, तुम में से हर एक शख्स क्या करें, खुदावन के लिए नजर लाए। उसके आगे है जी, अब हमने सीख लिया खुदावन के लिए हदिया जात जो थे वो क्या थे। अब हम देखें खुदावन की हजूरी का मस्कन, खुदावन की हजूरी का मस्कन, ये 5 तरीन मकाम है, ये खुदावन का मजबा है, ये खुदावन की हजूरी का मस्कन है। और इसकी 26वीं आयत से मैं चाहता हूँ मेरे लिए पढ़ दे प्लीज। मलिका इसको आयत पायत पढ़ दे प्लीज। आयत पायत 26वें बाब की पहली आयत से उसकी 6वीं आयत। कितने पर्दे जी मस्कन के लिए? कितने पर्दे शाबाश मिलकर? मस्कन के लिए 10 पर्दे। हम कितने लोग हैं? शाबाश हम कितने लोग हैं? शाबाश बताएं जरा, हम कितने लोग हैं? शाबाश गिने जरा जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बच्चे निकाल हम 18। तुम कितने पर्दे बनाना? हर एक शख्स एक पर्दे की जिम्मेदारी ले। शाबाश अपने हाथ उठा ले, एक पर्दे की जिम्मेदारी। शाबाश एक पर्दा, चुकलो 10 पर्दे पूरे करो। शाबाश कितने पर्दे जी? 10 पर्दे पूरे कर दे। कितने हुए जी? 1 2 3 4 5 6 7 हुए, 3 रह गए। शाबाश 3 रह गए, 8। हाँ जी 2 हाल भी रह गए। शाबाश 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 जिन्हें हाथ नहीं खड़ा किया जबरदस्त। हाँ जी स्वाद, हाँ जी स्वाद भाई सामने इधर 9 पर्दे हो गए। शाबाश एक और, अब इसको भाई शाबाश 10 पूरे हो गए जी। अब इसको भाई नाम लिख ले, सॉरी अनवर भाई आप नाम लिख ले, ठीक है। अच्छा जी क्या करना जी? तुमस्कन के लिए 10 पर्दे बनाना। ये बटे हुए बारीक कतान और आसमानी किरमजी और सुर्ख रंग के कपड़ों के हों। कितना रंग होना चाहिए जी? सुर्ख रंग के, आसमानी, किरमजी और सुर्ख रंग के हो। कितने पर्दे हो जी? 10 पर्दे हो यहाँ सामने। और किस रंग के हो? याद रखना तो भी लैके आना था, पता होना चाहिए सुर्ख रंग के होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, और इनमें किसी महल उस्ताद से करूबियों की सूरत कढ़वाना। किसी महल उस्ताद से करूबियों यानी फरिश्तों की, करूबियों यानी फरिश्ते, वहां पर उस पर फरिश्तों की सूरत जो है कड़ी हो, कढ़ाई के साथ
क्या हो, फरिश्तों की सूरत उस पर का नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अगली बात, हर पर्दा की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो और सब पर्दे एक ही नाप के हों। सब पर्दे सुन लो, अभी गाल है, सब पर्दे जो हों वो एक ही नाप के हों और 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़े जाएं। 5 पर्दे एक दूसरे के साथ क्या किया जाए जी, जोड़े जाएं। और तू एक पर्दा, एक बड़े पर्दा के हाशिए में बटे हुए किनारे की तरफ जो जोड़ा जाएगा आसमानी रंग के तुकमे बनाना। आसमानी रंग के क्या बनाना, और ऐसे ही दूसरे बड़े पर्दा के हाशिए में जो इसके साथ बनाया जाएगा तुकमे बनाना। 50 तुकमे एक बड़े पर्दा में बनाना और 50 ही दूसरे बड़े पर्दा के हाशिए में जो इसके साथ बनाया जाए। और सब तुकमे एक दूसरे के आमने सामने हो और सोने की 50, सुन ले, और सोने की 50 गुंडियां बनाकर इन पर्दों को इन्हीं गुंडियों से एक दूसरे के साथ जोड़ देना, तब वो मस्कन एक हो जाए। चलो अगले वाला कोई गाना छाड़ देंगे, कोई मसला नहीं, एनु पूरा करना पड़ा यू का काम है। क्या ख्याल है, ये पर्दे 28 हाथ चौड़े हों और फिर इस पर सोने का काम हो, चलो ये सादा काम कैसे कर लेगा, सादे पर्दे हम ले ही आएंगे। तो ये खुदा ने मस्कन के लिए, जहाँ पर खुदा की हजूरी थी, खुदा ने मुकद्दस मूसा को कहा कि तू मेरे लिए क्या करना, 10 पर्दे लेकर आना और 5 पर्दों को आपस में जोड़ देना और फिर 5 को आपस में, यानी 5 पर्दे ऐसे जोड़ देना, फिर वो पीछे हो जाए और फिर 5 पर्दे ऐसे होते ताकि वो पीछे हो जाए। और मसलन यहाँ पर जब खुदा की हजूरी तक काहिन जब जाता तो मस्कन हमेशा जो है वो मस्कन, वहाँ पर कोई नहीं जाता, सिर्फ काहिन जाता था उस पाकरीन मकाम में, उस मस्कन में सिर्फ काहिन जाता, ताकि खुदा ने नक्शा इसलिए दिया था कि वो पर्दे पीछे हो जाए। जब काहिन वहाँ पर जाए कुर्बानी के लिए, खुदा के लिए नजर चढ़ाने के लिए जाए, तो मस्कन के पर्दे पीछे किए जाए ताकि काहिन अपनी अलामत की सरंजाम जो जिम्मेदारियाँ वहाँ पर सरंजाम दे। हमारा खुदा बड़ा तरतीब का खुदा, बड़ा शकीन खुदा है, ऐवे नहीं है। हमारा खुदा बड़ा शकीन खुदा है, देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा तरतीब का खुदा है। खुदा ने कहा उन पर्दों पर क्या हो, सोने की गुंडियाँ बनी हो और फिर उन पर्दों के ऊपर जो करूबी हैं, जो फरिश्ते हैं, उनका नक्शा भी नजर आना चाहिए और पता चले कि यहाँ पर खुदा की हजूरी है। ये मस्कन किसके लिए है, ये मस्कन खुदा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगली बात, कितनी बातें हो गई जी, क्या शाबाश फिर से बताएं। सबसे पहली बात कि हमने खुदावन के लिए, शाबाश मिलकर हमने खुदावन के लिए नजर लेकर आनी है, शाबाश मिलकर हमने खुदावन के लिए, आखिरी हमने खुदावन के लिए, शाबाश मिलकर, कोई कहा करे सीखा करे खुदा, हमने खुदावन के लिए नजर लेकर आनी, लेकर क्या आना नजर, सोना चांदी और हम कहेंगे सर साढ़े अपने पाल लीजिए